Hello, my dear students. Good morning to all of you. Today, welcome to Dr. Sanjay Singh Biology Tutorials. Today, now we are going to discuss the another content of the enzymes, that is known as classification of the enzymes. Classification and nomenclature. Of enzymes. In previous lecture, I discussed detail about what is the enzymes and what is the mechanism of enzymes and how many factors affect the enzymes activity. Today, now we are going to discuss the classification of enzyme as well as nomenclature of the enzymes. इस पर हम बात करेंगे. नॉमेनक्लेचर मीन्स क्या होता है? नाम, नेम कैसे दिया जाता है, और क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्शन. तो हम क्लासिफिकेशन ऑफ द एंजाइम्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम इज टोटली बेस्ड ऑन टाइप ऑफ रिएक्शंस. Totally based on type of reactions inside the living things. Basically, 6 type of reactions takes place in the living things according to this 6 type of enzymes. कितने types of enzymes होंगे? 6 type of reaction, 6 types and 6 types enzymes. 6 type of enzymes found in the living things according to their international classification. The first is oxidoreductases. Second is transferases. Third is hydrolases. Fourth is isomerases. Fifth is lysases and sixth is ligases. देखो, जो नॉमेनक्लेचर की हम बात कर रहे थे तो उसमें सफिक्स ऐड लगता है. सफिक्स ए यस ई यस एट द नाम के बाद अगर ऐसा वर्ड्स आपको दिख रहा हो तो दिस नेम इज बिलोंगिंग टू एंजाइम्स. ऐसे को हम क्या बोलेंगे? ये एंजाइम्स को डिफाइन कर रहा है. तो नॉमेनक्लेचर एट द एंड ऑफ तो एनी नेम्स इट्स हैविंग ए यस ई यस अगर रहता है, दे बिलोंगिंग टू द एंजाइम. So only 6 type of enzymes present in the living thing, because only 6 type of reaction takes place inside the living thing. Later we will discuss detail one by one. The first of all discuss oxidoreductases. First is oxidoreductases. Oxidation, it is important role catalyzing oxidation and reaction between catalyzing oxidation and reduction reaction between the two substrates. Like एक एग्जाम्पल मैंने दिया, यस एंड यस डैश. Here is the two substrates. Here the यस plus यस डैश. यस is what? Oxidized, and here is the reduced
Then again at the end of the product का फॉर्म आएगा, here the reactant, ये उल्टा हो जाएगा, यस is reduced and यस डैश आर ऑक्सीडाइज। तो आपने क्या देखा, जो ऑक्सीडाइज था वह रिड्यूस्ड हो गया और जो रिड्यूस था वह क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन एंड द नेम ऑफ द एंजाइम इज नोन एज ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम्स। ठीक है। सेकेंड इज ट्रांसफरेजेज। ट्रांसफरेजेज यहां पर क्या होगा, कैटेलाइजिंग ट्रांसफर ऑफ ग्रुप्स, दैट इज नोन एज, एक एग्जांपल है ग्रुप्स फ्रॉम वन टू another. तो this type of reaction is known as transferages. Here is the example, yes contains the one is the functional groups, here is the yes dash. After that reaction these groups are transferred to that, yes are free, yes dash and attached with the functional group attached with the another substrate. तो ये आपने देखा कि ये किसको ट्रांसफ़र कर दिया, इसको ट्रांसफ़र कर दिया, इसको ये पिकअप कर लिया और ये फ्री हो रहा है। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ ए ग्रुप्स, और वह ग्रुप क्या हो सकता है, कोई भी ग्रुप हो बिटवीन ए पेयर ऑफ सबस्टेट्स अनदर, दैट इज नोन एज पेयर ऑफ सबस्टेट्स। और वो सबस्टेट्स क्या है, दो हो गए, वह आपका एक यस एंड यस डैश। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो टेक्स प्लेस इन अवर बॉडी। फॉर एग्जाम्पल अगर दूसरे वे में करें, ग्लूकोज प्लस ATP, दो सबस्टेट्स हो गए, देन कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्लस ADP। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक ये इसको किया, एक PI इसको दे दिया, फॉस्फेट दिया, और ये दे आर कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज ट्रांसफरेजेज। तो ऐसे भी रिएक्शंस हमारे लिविंग थिंग्स के अंदर होते हैं। कुछ जो ग्रुप्स होते हैं वह ट्रांसफ़र फ्रॉम वन सबस्टेट्स टू अनदर सबस्टेट्स, और वह एक अलग तरह के प्रोडक्ट्स को फॉर्म करते हैं। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन is known as transfer reaction and the name of the enzyme is known as transferase. Third is the hydrolysis, catalysis, hydrolysis of एस्टर बॉन्ड को तोड़ना हो, एस्टर बॉन्ड्स CC बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में तोड़ना हो, C and O बॉन्ड्स, प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज हाइड्रोलिसिस एंड द नेम ऑफ द एंजाइम इज नोन एज हाइड्रोलाइजेज। बहुत से ऐसे बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको को ब्रेक किया जाता है विद द हेल्प ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज हाइड्रोलिसिस रिएक्शन एंड द एंजाइम्स इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन इज नोन एज हाइड्रोलाइजेज। ऐसे एंजाइम्स को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोलाइजेज। मेनी बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स भी इसमें आप ले सकते हो, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, glycosidic bond etc. and peptide bonds many. Fourth is isomerases. Catalyzing
कैटेलाइसिस, आइसोमेराइजेशन रिएक्शन, आइसोमेराइजेशन रिएक्शन, देयरफॉर वहाँ पर क्या चेंजेस होंगे? ड्यू टू दिस चेंज ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर मतलब मिरर इमेज बोथ आर सेम, और जियोमेट्रिक आर पोजिशनल आइसोमर, पोजिशनल आइसोमर। जैसे भी आप देखोगे कि ग्लूकोज, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज, तो आइसोमेराइजेशन इज व्हाट मीन्स इन द लिविंग थिंग्स आइसोमेराइजेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस, वहाँ पर आइसोमेराइजेशन रिएक्शन होगा, और वो उसमें क्या चाहिए? ऑप्टिकल आइसोमर्स और जियोमेट्रिक और पोजिशनल आइसोमर। आइसोमेराइजेशन मीन्स क्या होता है? इफ द केमिकल फार्मूला इज सेम बट स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, अगर उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाए और फार्मूला इज सेम, दैट इज नोन एज आइसोमेराइजेशन और आइसोमर, and this process is known as isomerization. For example, glucose converted into fructose. The glucose, अगर fructose के आप देखोगे केमिकल फार्मूला इज सेम C6H12O6, here is also C6H12O6, but the structural अगर आप देखा जाए डायग्राम इज डिफर विथ ईच अदर, यहाँ पर बेंजीन रिंग्स के जैसा आपको फॉर्म होगा और यहाँ पर पेंटेन रिंग के फ्रक्टोज के जैसा, तो स्ट्रक्चरल्स आर डिफरेंट, यहाँ पर स्ट्रक्चर्स डिफरेंट आपको हो रहे हैं। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज आल्सो टेक्स प्लेस इन द लिविंग थिंग, एंड द नेम ऑफ द एंजाइम्स इन्वॉल्व इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज आइसोमरेज। ग्लूकोज आइसोमरेज, देन ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज। नेक्स्ट इज लाइजेज। फिफ्थ इज लाइजेज, यहाँ पर भी कैटेलाइज क्या करता है? रिमूवल ऑफ सबस्ट्रेट से इसको रिमूव करते हैं, तो रिमूवल ऑफ ग्रुप्स फ्रॉम सबस्ट्रेट्स by non-hydrolytic cleavage या प्रोसेस विदाउट वाटर्स। ध्यान दे, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक हमने वहाँ पर क्या था, हाइड्रोलिसिस में भी हमने रिमूव करते हैं, ब्रेक करते हैं, यहाँ पर भी ब्रेक होगा बट विदाउट वाटर, बिना वाटर्स के ये प्रोसेस हो रहा है, विदाउट वाटर मॉलिक्यूल्स। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज लाइसिस, और लाइसिस ऐसे टू इन अ लिविंग डबल बॉन्ड एंड लिविंग डबल bond is known as lysases. For example, here is the X, C, X and Y. अब ये इसको रिमूव कर दिया जाए अगर यहाँ से, तो क्या हो जाएगा? X प्लस Y प्लस C डबल बॉन्ड C। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, और ये जो ग्रुप्स जो दोनों थे इसको क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया। तो ये इसका कन्वर्जन इसमें हो गया और ये दोनों यहाँ पर आ गए। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज, क्या हो रहा है? यहाँ पर ब्रेकडाउन हो रहा है विदाउट वाटर मॉलिक्यूल, and the name of the enzyme is known as lysases. The two enzymes mentioned here, decarboxylase, they show the non-hydrolytic process as well as aldoses। तो एल्डोजेज का बेस्ट एग्जांपल अगर आप दिया जाए कि फ्रुक्टोज
fructose 1,6-diphosphate having 3 carbon compounds, ये ब्रेक हो जाएगा, then converted into DHAP dihydroxystone phosphate plus phosphoglyceraldehyde PGAL having 3 carbon and 3 carbon। तो यहाँ पर आपने देखा क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन हुआ, और ब्रेकडाउन होने के बाद क्या हो गया, here the 6 carbon compound, not 3 carbon compound, the 6 carbon compound converted into 2 molecules of 3 carbon compound dihydroxystone phosphate and PGAL with the help of enzyme aldolase, or the aldolase they are belonging to lysases without adding water molecules, यहाँ पर water molecules add नहीं होता है। तो this type of reaction also takes place inside the living thing and the last is known as ligases। यहाँ पर जुड़े, यहाँ पर एंजाइम कैटेलाइजिंग ये क्या करेगा, ज्वाइनिंग ऑफ 2 or more than 2 different molecules and this process is known as ligases। ऐसे हम प्रोसेस को क्या बोलेंगे, 2 molecules or 2 compounds, इसको हम कंपाउंड कर दें तो अच्छा रहेगा, 2 compound that is known as ligases। फॉर एग्जाम्पल्स लिया जाए, oxaloacetate having 4 carbon compounds combined with acetyl coenzyme A, 2 carbon compounds, they converted into citrate or citric acid having 6 carbon compounds। तो आपने देखा कि 4+2 ये दोनों जुड़ गए और जुड़कर क्या बना दिए, एक नया मॉलिक्यूल्स बनाए। तो इस तरह के रिएक्शन जो जहाँ पर जोड़ने को रिएक्शन होते हैं, ऐसे इंजाइम्स को हम क्या बोलेंगे, लाइगेजेज, और द इंजाइम्स इन्वॉल्व इन हियर साइट्रेट सिंथेटेज। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन है। तो लाइगेजेज रिएक्शन आल्सो टेक्स प्लेस इन द लिविंग, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बड़ा मॉलिक्यूल बनता है। ऐसे आप फोटोसिंथेसिस में देख लो, कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंड विद वाटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म ए ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो 2 छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना। तो यहाँ पर भी इस तरह के रिएक्शंस आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, कंटेंट ऑफ द एंजाइम्स इज व्हाट, कोफैक्टर्स। cofactor, what is the cofactors? अब ये कोफैक्टर क्या होगा, टू मेक एन एंजाइम फंक्शनली एक्टिव, जिसमें एंजाइम्स को और भी एक्टिव बना दे, ऐसे फैक्टर्स को, ऐसे को हम क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज कोफैक्टर्स categorized into 3 types depending upon the nature of the cofactor bind with the enzymes. First is known as prosthetic group. Second is known as coenzyme, and third is known as metallic ions. First of all,
discuss on prosthetic is a type of organic molecules. Organic molecules ये bind with enzyme very tightly to make catalytic more active। तो क्या हो गया यहाँ पर, तो होलो एंजाइम एक टर्म आता है। होलो एंजाइम पूर्ण रूप से जो एंजाइम, कुछ ऐसी एंजाइम्स होती हैं जिसको पार्ट में स्प्लिट होती है। एपो एंजाइम प्लस प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो होलो एपो एंजाइम दे आर बिलोंगिंग टू द प्रोटीनियस, ये मेन पार्ट होता है एंजाइम्स का, दैट दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। दिस इज द नॉन प्रोटीनियस कंपाउंड, नॉन प्रोटीनियस कंपाउंड। तो अगर कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स किसी एंजाइम्स को, कुछ ऐसे भी एंजाइम्स होते हैं जिनको फंक्शनली मोर एक्टिव करता है, और दिस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज नॉट बिलोंगिंग टू द प्रोटीन मॉलिक्यूल, नॉट बिलोंगिंग टू द अमोनो एसिड, दे आर बाउंड विद द टाइटली, तो दिस ग्रुप इज नोन एज प्रोस्थेटिक ग्रुप। और जब एपो एंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप दोनों मिल जाते हैं तो दैट इज नोन एंजाइम। तो टू एंजाइम्स क्या यहाँ पर नाम, परऑक्सीडेज एंड कैटलेज, ये दोनों इसमें जो होते हैं आपके, अगर ये दूसरा एग्जांपल दिया जाए, हीमोग्लोबिन, हिम इज व्हाट, हिम इज प्रोस्थेटिक ग्रुप, क्योंकि ये ग्लोबुलर प्रोटीन के साथ टाइटली बाउंड होता है। तो यहाँ पर ये दोनों एंजाइम परऑक्सीडेज एंड कैटलेज, बोथ द एंजाइम्स आर हाईली एक्टिव और फंक्शनली मोर एक्टिव थ्रू प्रोस्थेटिक ग्रुप्स। अगर ऐसे एंजाइम्स में प्रोस्थेटिक ग्रुप्स को रिमूव कर दिया जाए तो एंजाइम्स आर फंक्शनली इनएक्टिव हो गया। तो उसको एक्टिव बनाने को एंजाइम्स क्या होगा, ये कोई एंजाइम भी क्या है, इट इज ए टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ये भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हुआ, बट स्लाइट डिफरेंसेस बिटवीन देम। ऑर्गेनिक, ये बाइंड विथ एंजाइम्स लूजली, बाइंड विथ एंजाइम्स लूजली, उसके साथ बाइंड लूजली कर रहा है। एग्जाम्पल्स में NAD एंड NADP, ये जो होते हैं, अगर आप देखा जाए को एंजाइम्स की अगर बात किया जाए, कंटेन्स द विटामिन niacin, that is known as coenzyme। तो NADP is what, NADP and NAD both are the coenzymes, ये coenzymes होते हैं। this is the contains the vitamin, it having an organic compound, they are attached with the apoenzyme, after that enzymes are functionally more active। तो जहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होते हैं, जहाँ पर जो एंजाइम्स होती हैं, वहाँ पर NAD and NADP play a very important role for catalytic more active metallic ions। Third is metals or metallic ions। Metals, various enzymes contains metals for catalytic more active। One example mentioned here, the name of the enzymes, carboxypeptidase, this is the enzymes required zinc, this is the metals for catalytic more active।
तो आप ये देख सकते हो कोफैक्टर इज व्हाट, कोफैक्टर एक सपोर्टर है एंजाइम्स का, जिसके कारण से एंजाइम फंक्शनली मोर एक्टिव, मोर फंक्शनल एक्टिव। दे आर 3 टाइप्स हो सकते हैं, मे बी 3 टाइप, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स, कोएंजाइम्स एज वेल एज मेटेरिक आयन। इफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड बाइंड विथ एपो एंजाइम्स और एंजाइम्स टाइटली, that is known as prosthetic group. If organic compound bind with apoenzymes or protein very loosely, that is known as cofactors. And if any ions they are bind with the apoenzymes, ये भी apoenzymes से होता है, और इसकी जो बाइंडिंग ऑलवेज लूजली, ये क्या होगा, ये लूजली बाउंड होगा, बाउंड लूजली बाइंड विथ, एंड दे आर इजिली डिसोसिएटेड। अगर इसको भी डिसोसिएट करना है कोफैक्टर आर इजिली डिसोसिएट बाय डायलिसिस प्रोसेस। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू।